Brazil never disappoints, but this year's Sao Paulo Grand Prix was an extra special one. We saw many firsts on this weekend. Haas and Kevin Magnussen got their first pole, Russell got his first ever career win, and Mercedes got their first win in the season, finishing 1 and 2. But one thing which didn't happen for the first time in Formula 1 was the rejection of team orders and betrayal of the loyal trust of the teammates. Khair, I guess being a two-time world champion isn't a certificate of maturity. Let's take a closer look at the Sao Paulo Grand Prix and try to simplify what happened in it. केविन मैग्नसन ने अपनी 140वीं ग्रैंड प्री के अंदर अपना जिंदगी का पहला पोल पोजीशन जीता, which was the third longest wait for the pole position in the F1's history after Sergio Perez and Carlos Sainz, जिन्होंने भी इसी सीजन अपना मेडन पोल जीता था. जिसके साथ में हास ने भी अपने F1 हिस्ट्री के 142 ग्रैंड प्रीज का ड्रॉट हटा के अपनी 143rd ग्रैंड प्री के अंदर मेडन पोल पोजीशन जीता. फ्राइडे की पोल पोजीशन को केविन मैग्नसन ने 8th पोजीशन में कन्वर्ट किया अपनी स्प्रिंट रेस में, पर संडे को वो कुछ खास कर नहीं पाए बिकॉज डैनियल रिकार्डो की गलती से उनको एक फोर्स्ड रिटायरमेंट लेना पड़ा ऑन द फर्स्ट लैप इटसेल्फ. K-Mag did score a point in the sprint which helped Haas move 2 points ahead of the Alpha Tauri in the fight for the P8. But अगर डैनियल रिकार्डो वो गलती नहीं करते तो I'm sure Haas would have been in a perfect position to score more points this weekend. अब बात करते हैं from a failed effort to a winning effort. Mercedes की. संडे को रसल ने अपनी जिंदगी की पहली रेस जीती, जिससे वो अपने टीममेट लुइस हैमिल्टन से 25 पॉइंट आगे हो जाते हैं कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में 4th पोजीशन पे. Fun fact, the newest Grand Prix winner of Formula 1 made his Formula 1 debut at Brazilian Grand Prix itself, driving in the first practice session for हमारी Force India team itself. Mercedes का ये first and second बहुत ही amazing time पे आया, as they are just entering the winter break, and this weekend's results signifies and certifies their effort of the entire season, overcoming multiple difficulties. Their first in Saudi Arabia last year, and their 125th triumph in Formula 1. फर्स्ट लैप के अंदर रसल ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया और लुइस हैमिल्टन को फर्स्ट टर्न के पहले ही पीछे छोड़ दिया. उन्होंने अपनी पूरी रेस के अंदर कोई भी गलती नहीं करी एंड वॉन द रेस आफ्टर जस्ट 2 stops. बट आप सोचिए 11 laps to go, the only thing between you and your first Grand Prix victory is 7-time world champion Lewis Hamilton in the same car and the similar age tires right behind you. And there are no team orders. भाई साहब, it's time for being calm एंड पुलिंग अप योर बिग बॉय पैंट्स. बट भाई दाद देनी पड़ेगी रसल की कि उसने इतना इंप्रेसिव माइंड मैनेजमेंट किया. उसने पूरी लास्ट के स्टिंट के अंदर क्वालिफाइंग लेवल लैप्स मारे और हैमिल्टन को डीआरएस रेंज में आने ही नहीं दिया. रसल का एफर्ट फाइनली काम आया और उसकी इस फ्लॉलेस परफॉर्मेंस के लिए उसे रेस विन मिली. Mercedes was in dire place at the start of 2022 season with a doubtful design philosophy of 0 side pods and aggressive porpoising. Plus races के अंदर भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं थी, like the double Q2 exit at the Imola and the subsequent horror race suffered by Hamilton. But it has finally managed to produce a car capable of race wins again. Hence I think I can confidently say Mercedes is back. ये weekend जैसा कुछ magical सा ही रहा है, with everything ticking right for the Friday's qualifying. And it was followed by race wins in the sprint and the Grand Prix itself. It was their weekend to take, as they had the fastest package and the best car throughout the weekend. Going forward, उन्होंने जो फरारी का गैप था 40 पॉइंट का, वो अब खाली 19 पॉइंट का छोड़ दिया है. With just one race to go, it's a mark of undoubted major progress throughout the 2022 season, and it offers a plenty of hope for Mercedes joining the lead fight in 2023 again. But I think while going in the last race of the season, दोनों ही टीम को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है सेकेंड पोजीशन से. आई थिंक बोथ ऑफ द टीम्स विल ट्राई टू फिनिश थर्ड मोर बिकॉज दैट 5% ऑफ विंड टनल विल बी मोर इफेक्टिव देन एनी कॉस्ट बेनिफिट गिवन बाय द सेकेंड पोजीशन. नाउ फ्रॉम द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीकेंड, लेट्स कम टू द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द वीकेंड. लेट्स टॉक अबाउट रेड बुल. अपनी ओपनिंग ग्रांड प्री के बाद ये उनका सबसे पथेटिक वीकेंड रहा है, वेयर मैक्स फिनिश 6th एंड पेरेस फिनिश 7th. प्लस एज पॉइंटेड आउट बाय आवर गुड फ्रेंड सजल कुमार while we were doing the live watch along, Sao Paulo GP is the first podium to not feature a Red Bull since the first race in Bahrain, and it also the first time since July that someone other than Red Bull had won the race. कुछ एक साल बाद हमें लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपन के फायरवर्क्स देखने मिले. 2021 के आर्च राइवल्स केम अगेन टुगेदर अर्ली इन द रेस. इस बार वर्स्टैपन ने मात खाई, उनका फ्रंट विंग डैमेज हुआ, प्लस उनको 5 सेकंड की पेनल्टी मिली विच इवेंचुअली लैंडेड हिम इन द 6th पोजीशन while Hamilton recovered from 8th to 2nd. देखो वर्स्टैपन क्या है, एग्रेसिव है एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग है एज ही ऑलवेज हैज बिन. आई अंडरस्टैंड दिस इज द पार्ट दैट मेक्स हिम अ स्पेशल एंड अ वेरी एग्रेसिव ड्राइवर. जबकि लुइस हैमिल्टन की जो अप्रोच है वो थोड़ी मेजर्ड है, कूल एंड काम रहते हैं वो, बट वो कभी पीछे नहीं हटते और उनके एक्शन साफ दिखाते हैं दैट ही विल नेवर बी बुलीड. दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड इन ब्राजील. वर्स्टैपन के पास जगह नहीं थी पर फिर भी उन्होंने रिस्की एंड एग्रेसिव मूव किया हैमिल्टन पे और हैमिल्टन को वर्स्टैपन को रत्ती भर जगह देनी नहीं थी. हेंस दे एंडेड अप कमिंग टुगेदर.
अब देखो मुझे क्या लगता है, वर्स्टैपन शुड हैव बैक्ड आउट आफ्टर रनिंग टू डीप इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एनआईएस. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, हैमिल्टन को भी कोई खास जरूरत नहीं थी कि वो वर्स्टैपन को स्क्वीज करें. बट हैमिल्टन वॉज लकी इन गेटिंग अवे विद ऑलमोस्ट नो डैमेज कंसिडरिंग हाउ मच डेंजर ही पुट हिमसेल्फ इन. वर्स्टैपन की गाड़ी को काफी डैमेज मिला, प्लस 5 सेकंड की पेनल्टी ने चीजें और वर्स कर दी. व्हेन इट कम्स टू हैमिल्टन एंड वर्स्टैपन ना, देयर इज नो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देयर इज नो ट्रस्ट, देयर इज सो मच बैड हिस्ट्री इन बिटवीन देम. उनकी टीमों में FIA के साथ, that these two people simply brings out the worst in each other. Going into the weekend, Perez was just ahead of Charles Leclerc by a couple of points. उन्होंने रेस के एंड में मैक्स से मदद मांगी और अपने रेस इंजीनियर को बोला कि भैया मुझे मैक्स के आगे जाने दो, बट मैक्स ने मना कर दिया, जिसके कारण अब चेको एक रेस रहते शार्ल लेक्लेयर के पीछे हैं विद इक्वल पॉइंट्स ऑफ 290 इन द ड्राइवर्स चैंपियनशिप. अब अगर पेरेस की माने तो दिस शोज हु मैक्स रियली इज. पेरेस का वीकेंड कुछ अच्छा नहीं जा रहा था. संडे को उनकी गाड़ी के अंदर पेस नहीं था. Plus, he was losing ground and courtesy of the safety car dropping him from 3rd position to 7th position in the space of 9 laps. एक बहुत ही सिमिलर चीज़ हुई थी 2013 के अंदर जब सेबेस्टियन वेटल और मार्क वेबर मलेशियन ग्रांड प्री में रेस कर रहे थे. क्या हुआ था, मार्क वेबर आगे थे और सेबेस्टियन वेटल पीछे थे. रेस ऑलरेडी रेड बुल के हाथ में थी. वेबर P1 पे, सेब P2 पे. सेब वेबर को चेस करने लगे, बट टीम ने उनको मना किया और उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करने को बोला, जिसको कहते हैं मल्टी 21. बट सेब नहीं माने और वेबर को अच्छी टक्कर दी और वो रेस जीती. बट एट द एंड ऑफ द डे उनका जो रिलेशनशिप वेबर के साथ था वो कभी सेम नहीं रहा. एंड वी कुड सी द डिससैटिस्फैक्शन इन द आईज ऑफ वेबर एंड दिस इंसिडेंट पेव द स्टोन ऑफ द फ्यूचर राइवलरी. चलो 2013 के अंदर वेबर और वेटल P1 एंड P2 के लिए लड़ रहे थे, बट यहाँ तो मैक्स को खाली P6 की पोजीशन देनी थी. तो आई थिंक देयर वाज एन अननेसेसरी थ्रेट टू एन अदरवाइज वेरी इफेक्टिव रेड बुल डायनेमिक्स ऑफ दिस सीजन. इट वाज अ वेरी शॉर्ट साइडेड मूव बाय वर्स्टैपन. He should have kept in mind that it would benefit him in the future if he had his teammate on his side. एग्जाम्पल के लिए लुइस हैमिल्टन ने भी वैल्टरी बोटास को हंगरी के अंदर 2017 के अंदर अपनी पोजीशन दी थी. उसके अलावा भी निको रॉसबर्ग ने 2016 की मोनाको ग्रांड प्री के अंदर अपने टफेस्ट राइवल लुइस हैमिल्टन को भी जगह दे दी थी, because it was the best thing for Mercedes. I believe Verstappen will definitely need Perez's help again. Just think of the crucial role that Perez played in Abu Dhabi Grand Prix last year, holding Verstappen's rival Lewis Hamilton to make him a world champion. I'm sure the speed at which Mercedes is gaining momentum, there will be multiple times that Max Verstappen will need Perez's help and vice versa. अभी तक क्या था, पेरेज ने हर टीम ऑर्डर माना जो भी उसको बोला गया, चाहे उसको पसंद आए चाहे नहीं. He has contributed to the environment that gives the best to the team and Verstappen time and time again. बट वर्स्टैपन ने ये गलती करके पेरेज को अपनी टीम में पोजीशन दिखा दी है जो उसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. एंड इट वुड हैव कम एट सच ए मिनिमल कॉस्ट. वर्स्टैपन को क्या फर्क पड़ता है कि वो 6th पोजीशन पर खत्म करता है या 7th. उसने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑलरेडी रैप कर दी थी सुजुका के अंदर, एंड नाउ ही हैज द मोस्ट विंस इन अ सीजन अंडर हिज बेल्ट. इट वुड हैव बीन सच अ चीप वे टू रिटर्न द फेवर. पता नहीं वर्स्टैपन ने कौन सा पॉइंट प्रूव करने के लिए करा, बट आई थिंक ही हैज लॉस्ट अ टीममेट इन पेरिस. लेट्स टॉक अबाउट फरारी नाउ, स्पेशली कार्लोस साइंस. This was the smoothest and the most efficient performance of his season. स्प्रिंट में भी उन्होंने सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था, और क्योंकि उन्होंने 6 इंटरनल कंबशन यूज करा था सीजन का, हेंस उनको 5 प्लेस की ग्रिड पेनल्टी मिली थी और उन्होंने 7th पोजीशन से चालू किया था रेस. बट बेहतरीन ड्राइव करते हुए और 3 पिट स्टॉप के बाद उन्होंने अपनी रेस 3rd पोजीशन पे पोडियम पे फिनिश करी. ये उनका इस सीजन का 9th पोडियम था. And it was the first time that he stood on the podium of Interlagos as he missed it in 2019. क्या होता 2019 की ब्राजीलियन ग्रांड प्री के अंदर जब लुइस हैमिल्टन ने एल्बन को टक्कर मारी थी, तब लुइस को पोस्ट रेस पेनल्टी मिली थी, जिसके कारण 4th फिनिश हुए कार्लोस साइंस को P3 पे प्रमोट कर दिया गया था, which ended a drought of 2000 days of McLaren for not scoring a podium since 2014 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री. बट साइंस को इस वीकेंड पोडियम हासिल करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एक पॉइंट पे तो उनके ब्रेक्स में आग लग गई थी, बट हमने बाद में देखा कि उनका एक ब्रेक का टेयर ऑफ था. जनरली इस पूरे सीजन के अंदर साइंस की गाड़ी से जब भी धुआं निकलता है तो हमको एक ही चीज लगती है क्या होने वाला है, बट फॉर्चुनेटली इस बार ऐसा नहीं हुआ. ही हैड अ ग्रेट फाइट बैक आफ्टर हैविंग टू स्टॉप सो अर्ली, because of which he had to commit for the 3 stopper. But I think in the end he did a solid race. He made no mistakes and he got a well deserved podium. रेस के एंड में हमने देखा लेक्लेर्क ने काफ़ी मेहनत तय करी अपनी टीम से फॉर अ पोजीशन स्वैप विद साइंस, बट आई डिडंट थिंक सो दैट वाज एज प्रैक्टिकल एज लेक्लेर्क सजेस्टेड, बिकॉज लेक्लेर्क के पीछे ओलोंजो और मैक्स वर्स्टैपेन दोनों पड़े थे. लेक्लेर्क इस पोजीशन में इसीलिए थे क्योंकि लैप 7 के अंदर नॉरिस ने उनको पीछे से टक्कर मार दी थी और उनकी गाड़ी वॉल से टकरा गई थी. उनको जल्दी पिट में आना पड़ा और उन्होंने भी 3 स्टॉपर कमिट करा, बट एट दी एंड ही फिनिश्ड एट 4th पोजीशन व्हिच वाज अ ग्रेट पोजीशन लुकिंग एट उनकी गाड़ी ऑलरेडी बैरियर में थी और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी रेस खत्म भी कर पाएंगे या नहीं. अब बात करते हैं बेस्ट ऑफ द रेस एल्पीन की.
स्प्रिंट रेस फॉर एल्पिन वॉज अ नाइटमेयर। ओलोंजो एस्टेबान ओकन से 2 बार टकराए, पहले तो फर्स्ट लैप पे टर्न 4 के अंदर एंड देन लेटर ऑन द स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट, which gave him a 5-second time penalty. Hence, Ocon started the Sunday's Grand Prix from 16th position and Alonso on 17th position. Now, looking at the starting grid, McLaren had a much better position than Alpine itself. Norris was starting from 8th and Ricciardo was starting from 11th. In the fight of the Constructor Championship, I thought Sunday's Grand Prix is going to be crucial and the scale of balance will turn towards McLaren, but actually the opposite happened. Alonso had really good pace. Even though they chose a 3-stop strategy, but a later safety car reshuffled the race a bit for them, giving them the benefit of newer tires. Hence they were able to fight with Checo and Leclerc. But क्योंकि दोनों ही McLaren रेस से बाहर हो गई थी, hence I think it was a perfect weekend for the French team. And in the end, he finished 5th, starting from 17th, and his teammate Esteban Ocon finished 8th, starting from 16th. Now they have a firm grip on P4 that leads McLaren by 19 points. अब देखो लास्ट रेस के अंदर 19 पॉइंट से एल्पिन को पिछाड़ना फॉर एन एलियन मैक्लेरन, इट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग वन फॉर अस टू वॉच. बट यार मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ, ये क्या एंड में मैक्लेरन और एल्पिन की इतनी क्लोज फाइट के बाद भी ओलोंजो को इतना टाइम मिल जाता है, उनको इतना हेड स्पेस मिल जाता है कि वो अपने रिलेशनशिप जाते जाते इस टीम के साथ खराब करना चाहते हैं. मुझे नहीं लगता देयर वाज एनी पॉइंट इन सेइंग दैट ही वांट्स टू ट्राई driving the green car as soon as possible in the Abu Dhabi. I think he could have holded off his excitement for another 8 days. बट आई एम सो श्योर जब वो एस्टन मार्टिन में फाइनली चले भी जाएंगे ना, उसके बाद जो रेडियो मैसेजेस और ऑफ ट्रैक जो कमेंट्स आने वाले ना, वो भी अपने आप के अंदर फर्नांडो से फायरवर्क्स होने वाले हैं. सो आई थिंक वी गोना हैव अ क्रैकर 2023 इन एटलीस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ओलोंजो एंड एस्टन मार्टिन. मैक्लेरन के लिए तो ये हफ्ता काफ़ी ड्रेडफुल रहा है. पहले रिकार्डो ने मैग्नेसन की गाड़ी को टक्कर मारी टर्न 8 पे, जिसके कारण वो बाहर हो गए, और उसके बाद नॉरिस ने टक्कर मारी लेक्लेयर को, जिसके कारण उनकी गाड़ी ने जवाब दे दिया. बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट दिस कि नॉरिस ने इस वीकेंड काफ़ी मेहनत करी. एक पॉइंट पे तो लग रहा था कि थर्सडे को उन्होंने जब मीडिया डे स्किप किया और टीम ने अनाउंस करा कि निक डिवरीज को प्रिपेयर करा जा रहा है नॉरिस की जगह लेने के लिए मैक्लेरन के अंदर, तो मुझे लगा कि नॉरिस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और शायद वो वीकेंड के अंदर रेस करेंगे भी या नहीं. बट उन्होंने 2 दिन कुछ भी नहीं खाया और स्ट्रगलिंग हालत के अंदर भी क्वालिफाइंग के अंदर शानदार परफॉर्मेंस किया. पहले Q1 के अंदर टॉप किया, Q2 के अंदर 4th पोजीशन पे आए और फाइनली Q3 के अंदर उन्होंने 4th पोजीशन में खत्म करा, अबव पीपल लाइक हैमिल्टन, लेक्लेयर एंड पेरेस. स्प्रिंट में भी अच्छा परफॉर्म करा जब उन्होंने 7th पोजीशन में फिनिश किया. He started 6th in the Grand Prix and was up to 3rd position for a brief moment, but had a collision with Leclerc to earn him a 5-second time penalty. His lack of pace dropped him down the field before a loss of power forced him retirement. This was McLaren's first double DNF since 2017 Monaco Grand Prix. The last highlight of the race was Sebastian Vettel. He had a brilliant form of the late, and वो एक पॉइंट पर पोडियम पोजीशन पे चल रहे थे, but he tumbled down the order and ultimately failed to secure even a point. He finished 11th, where his teammates stole the final points to secure P10. At the end में साओ पोलो ग्रांड प्री और इंटरलागोस सर्किट का फैन बन चुका हूँ. भाई साहब क्या वीकेंड था. I think we had so much fun in last 3 days that I can't even compare a weekend like this in the entire season itself. I personally love the sprint weekend. I think the whole vibe of the weekend is so fantastic. And plus, that intersection with Interlagos makes it even special. I thoroughly enjoyed the Brazilian Grand Prix. Please tell me in the comments what was your highlight of the race and who was your driver of the day. Until the next video guys, please take care of yourself.